all. Today we are going to see our last topic of chapter 5, organizing. The topic is decentralization. After going through this video, you will be able to understand the meaning of decentralization, importance of decentralization, and the difference between delegation and decentralization. So let us start. First, let us understand the meaning of the two terms, that is centralization and decentralization. So first, you know that the organization is divided into various levels of management. It means the management in the organization, we divide it into various levels, that is top level management, middle level management and lower level management. So whenever the powers of taking the decision or the powers related to various managerial activities is concentrated in the hand of few peoples, that is only with the top level of management, then it is known as centralization. And when the power, that is authority, is distributed amongst all the managers, that is the manager at all the levels of the organization, all the levels of management, then it is known as decentralization. यानी जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पावर अगर सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास ही है, यानी मैक्सिमम अथॉरिटीज़ अगर सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास है, तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहा है. वेयरएज जब आप तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हो. It means whenever in an organization, if the power, that is authority, is distributed at all the levels of management, then it is known as decentralization. Now let us see our next topic, that is importance of decentralization. Now what will be the benefit of decentralization? What will be the importance of decentralization? It means whenever you are going to transfer the authority at all level of management, not transferred, whenever you are going to divide the authority amongst all the level of management, then what will be the importance? What will be the importance of decentralization? So let us see the importance of decentralization one by one. The first importance of decentralization is develop initiative amongst subordinates. Now, as you know, we have three levels of management: topmost, top level management, then middle level management, and then lower level of management. This is the levels of management, three levels of management, that is top level, middle level and lower level. If the top level of management transfers their authorities towards the middle and lower level of management, then it develops initiative amongst them. That is, the initiative will be developed amongst the subordinate at middle level and lower level because of decentralization. Then next importance will be develop managerial talent for future. Now, as you know, we want our organization to grow, and an organization can grow only with ample managerial persons in the organization. And if we follow the policy of decentralization, then we get the talent, managerial talent for future. It means जब भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटीज़ को डिसेंट्रलाइज कर देगा, मिडल और लोअर लेवल के साथ जब भी वो अपनी अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा, इससे मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ
मैनेजर्स को भी मौका मिलेगा अपने टैलेंट को शो करने का, जिससे फ्यूचर के लिए हमारे पास मैनेजरल टैलेंट्स डेवलप हो पाएंगे. देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज क्विक डिसीजन मेकिंग. Whenever you follow the policy of decentralization, you transfer the authority amongst the various level of management. So if the person is having the authority to take the decision and to carry out the activities, then he don't have to wait for the decision to be taken by the top level of management. He has the authority to take the decision by himself, and so the decision making will be क्विक. यानी हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन लेगा और उसी के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा. इफ़ दे आर हैविंग द अथॉरिटी, देन द डिसीजन विल बी क्विक. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज रिलीफ टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जैसे हमने देखा था, डेलीगेशन एक सुपीरियर को रिलीफ देता है, यानी एक पर्सन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दे देता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो जिससे कि एक सुपीरियर अपने बर्डन से रिलीफ पाता है. तो वैसे ही सेम डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, तो इससे सबसे ज़्यादा रिलीफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मिलता है. अगर सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास सारी अथॉरिटीज़ रहती है, जिसका मतलब है दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर ऑल द टास्क, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो they will be overburdened. But if the organization follow the policy of decentralization, then the responsibilities are also transferred to the middle and lower level of management, and thus there will be relief to the top level of management. Then next important is facilitates growth. As we have seen in the case of delegation, if the superior transfer the authorities to the subordinate, there is development of the subordinate as well as they are motivated and the works get completed effectively and efficiently, which result in growth of the organization. In the same way, if decentralization is followed, the power is distributed among the various levels of management, and thus everyone performs their task effectively and efficiently. Thus there will be growth of the organization. Then better control. Next importance of decentralization is better control, because every level of management has their own authority and limited span of employees to whom they have to handle, so the control becomes easy and in a better way. So these were the importance of decentralization. Now, as you can see, the two terms that we have, the two important topic of this chapter we have studied, that is delegation and decentralization. ये दो टॉपिक है जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन. अब लगभग दोनों एक जैसे ही, डेलीगेशन भी है ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में भी अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाती है. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अगर हम डेलीगेशन की बात करते हैं, तो डेलीगेशन एक ट्रांसफ़र है अथॉरिटी का बाय द मैनेजर टूवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट. यानी जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी को शेयर करता है, तो हम उसे डेलीगेशन कहते हैं. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी है जो एक बार फ्रेम की जाती है, जबकि डेलीगेशन में टेम्पररीली आप टेम्पररी बेसिस पे आप ट्रांसफ़र करते हो अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट के साथ. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में आप परमानेंटली अपनी अथॉरिटीज़, यानी जो भी अथॉरिटीज़ है, पॉलिसीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, वो आप ट्रांसफ़र करते हो अमंग्स द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी डिसेंट्रलाइजेशन
इट मीन्स दैट द डिसेंट्रलाइजेशन, हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटीज़ इन मल्टीपल लेवल में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप अथॉरिटीज़ को जब ट्रांसफ़र करते हो, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. वेयर एज डेलीगेशन इज ट्रांसफ़र इन मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी एक सुपीरियर सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट के साथ अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है, दैन दैट इज़ डेलीगेशन. और जब एक पॉलिसी फ्रेम करके परमानेंटली आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लेवल्स में शेयर कर रहे हो, देन दैट इज़ द परमानेंट पॉलिसी, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. दैट इज़ नॉट टेम्पररी. आपने टेम्पररी बेसिस पे अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं की है, वो परमानेंट एक पॉलिसी बना के अपने वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी दे दी है. That is permanent transfer of the authority. That is decentralization. यानी delegation सिर्फ एक superior अपने subordinate के साथ करता है, जबकि decentralization सारे levels of management में जब आप अपने authorities से, यानी एक authority share की जाती है, that is decentralization. Now, so first difference we can see that delegation is limited in scope. जो डेलीगेशन का स्कोप है वो लिमिटेड है, यानी जब आप किसी को अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो तो एक सुपीरियर सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर रहा है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड है. डिसेंट्रलाइजेशन में आप किसी एक सबॉर्डिनेट के साथ या सिर्फ अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट के साथ अथॉरिटी शेयर नहीं करते हो, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट लेवल्स के साथ अपनी अथॉरिटीज़ को शेयर कर रहे हो, यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अथॉरिटी ऑन द परमानेंट बेसिस टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. देन सेकेंड डिफरेंस इज दैट द डेलीगेशन इज द रूटीन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. डेलीगेशन एक नॉर्मल फंक्शन है जो हर एक मैनेजर को अगर इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है तो डेलीगेशन एक फंक्शन ऐसा है जो रूटीन नेचर पे फॉलो करना पड़ेगा. whereas decentralization is more significant because it is one time decision. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन आप रोज़ रोज़ नहीं करते. डिसेंट्रलाइजेशन एक बार का काम है. जब आप ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड करोगे पॉलिसी कि हम सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहेंगे, यानी ये वन टाइम आप डिसाइड कर लोगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहोगे. सेंट्रलाइजेशन यानी सारी पावर्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होगी, यानी सारी अथॉरिटीज़ टॉप लेवल के पास होगी. एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आप अथॉरिटीज़ को शेयर करोगे विद द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये परमानेंट बेसिस पे किया जाएगा और बिकॉज इट इज़ ट्रांसफर टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ वन टाइम प्रोसेस. इट इज़ डिसाइडेड वन टाइम कि हम ये सारी चीज़ें परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं. देन नेक्स्ट सेकेंड वी कैन सी द डिफरेंस, दैट इज़ less freedom. In delegation the freedom is less, यानी जो भी अथॉरिटी आपको मिली है वो लिमिटेड टर्म्स पे मिली है और कम समय के लिए मिली है. whereas in decentralization there is more freedom because the authority you have received is not on temporary basis. ये अथॉरिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन ने वन टाइम सिलेक्ट करके आपको ये अथॉरिटी ट्रांसफ़र की गई है. सो इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यू और नॉट अ टेम्पररी authority that is given by the manager to its subordinate. Now next difference, delegation is compulsory act. If you want to carry out the function of manager in effective and efficient way, then it is compulsory to follow the delegation element. बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है आपको डेलीगेशन फॉलो करना, क्योंकि एक मैनेजर अगर डेलीगेशन फंक्शन नहीं फॉलो करेगा देन ही विल बी ओवरबर्डन एंड विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी. इट इज़ अप टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है या नहीं करना. ये आपके पास ऑप्शनल है.
वेर एज डेलीगेशन इज़ कंपल्सरी, हर एक मैनेजर को डेलीगेशन फॉलो करना पड़ेगा अगर वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करना चाहेगा तो। और डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है, ये वन टाइम पॉलिसी है जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करेगी। जब भी वो अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है तो इट इज़ अप टू देम वेदर दे वांट टू फॉलो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देन अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर। डेलीगेशन में जो अथॉरिटी किसी को दी जाती है वो उसके इमीडिएट सुपीरियर द्वारा दी जाती है। इट मीन्स अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको अगर किसी ने अथॉरिटी दी है यानी वो आपका सुपीरियर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको अथॉरिटी दी है, देन दैट इज़ डेलीगेशन। यानी प्रोडक्शन मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को इमीडिएट सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी दे रहा है तो दैट इज़ डेलीगेशन। whereas authority is granted by top level of management and when for one time purpose, one time basis पे एक बार डिसीजन लेके पॉलिसीज फ्रेम करते वक्त जब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को अथॉरिटीज़ ट्रांसफ़र कर देता है सो दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें आपका इमीडिएट सुपीरियर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ नहीं दे रहा है। यहाँ पे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिडल एज वेल एज लोअर लेवल के साथ अथॉरिटीज़ को शेयर कर रहा है। सो दैट्स वाई वी कैन से अथॉरिटी इज़ ग्रांटेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन डिसेंट्रलाइजेशन whereas authorities is granted by immediate superior in delegation. So this is the difference between delegation and decentralization. हम कह सकते हैं कि delegation एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे authorities multiplied by 2 यानी एक superior और एक subordinate, immediate transfer of authority. ओके एंड जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटीज़ ट्रांसफर्ड इनटू मल्टीपल्स में यानी सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है सब के साथ आप अथॉरिटी को शेयर कर रहे हो, देन दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. सो इन दिस video you had seen the meaning of decentralization, then what are the importance of decentralization and the difference between delegation and decentralization.